WES ने अपना रिसेंटली प्रोसीजर चेंज किया ऑनलाइन के कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप वो सारा कवर करेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। उसके अलावा मुझे पता है बहुत सारे लोग PNP रिलेटेड वीडियोस का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, बट इसके बाद हम वही सारी सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम A to Z सारी PNPs हर प्रोविंस की कवर करेंगे, ताकि अगर किसी के पॉइंट्स कम बन रहे हैं तो वो PNP के थ्रू भी अपनी PR की फाइल अप्लाई कर सकता है। बट आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो PNP है ना, अगर आपने PNP से अप्लाई करना है तो उसका WES का अप्लाई करने का प्रोसीजर डिफरेंट होता है। तो आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखना गाइस, क्योंकि अगर आपने PNP अप्लाई करनी है, स्पेशली आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो WES अप्लाई करते वक्त। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आज की वीडियो को भी लाइक कर दें जल्दी से, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपने हमारी ये सीरीज स्टार्टिंग से नहीं देखी तो आज की वीडियो देखें। उसके बाद इस वीडियो के एंड में आपको एक लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। हमारी प्लेलिस्ट का नाम है गेट कैनेडा PR फ्रॉम इंडिया, तो वो आप पहले पार्ट से देखना शुरू करें ताकि आप अपनी PR की फाइल खुद से अप्लाई कर सकें और आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। Hello everyone, I hope everyone is good. So in today's video I'm going to show you how you can apply to WES step by step, and along with that I'm going to explain a lot of other things जो कि हमारी पुरानी वीडियोस के नीचे कमेंट्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे regarding WES. So please watch this video till the end, and after the end अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है anything, you can post your comments under the video and me and Arjun we both will try our best to answer as soon as possible. So let's start the video guys, how to apply to WES step by step. So first step that you guys have to do is you just have to type WES, right? That's it. You just have to type WES and this is the first link जहाँ की हमने जाना है World Education Services International Credential Evaluation, and you have to click on this. So now you can see that there are two options, get started and sign in. And sign in option is basically for those, let's say कि आपने already अपने documents WES को भेज दिए हैं, you already have an account on WES, and then you are going to check the status of your report, then you have to sign in if you are returning users. And if you are new, like in our scenario कि मैं अगर first time WES पे अपने credential को एक्सेस करवाने के लिए जा रहा हूँ, तो then obviously I'm a new user to WES. So for in that case you just have to click on get started. Once you have pressed that, they're gonna ask you a question that where will you use your evaluation. So US or Canada, लेकिन most of the scenarios we're gonna apply for express entry for Canada. So in that case हम press करेंगे Canada. ओके सो अब नेक्स्ट विंडो में गाइज आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, WES स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर IRCC एंड फॉर एग्री फूड पायलट. So basically if you are applying for this agri food immigration pilot, then you have to go with this option, but in most of the cases if you are just applying for express entry, then you have to go with this ECA application for IRCC. So you can read here for immigration purposes, that's what our main purpose is. यहाँ पर W standard application I think it's just for the employment, let's say अगर आप work permit पे आ रहे हैं तो कुछ भी उन scenarios में, लेकिन so let's stick to the topic कि हम WES use कर रहे हैं to get our degrees accessed for express entry. So I will go with this second option, start application. So this is the first step guys, we are going to create our own account on the WES website, and जो भी यहाँ पर हम अपनी email ID या अपना username या password set करेंगे, that all credentials we're gonna use कि जब भी हम return WES की website पे आएंगे to check our report status, right? So here basically we are just creating the account. So my first name Singh, you just put your own name, date of birth, I'm just gonna use a random one, 92. Do you have a WES reference number? No, we don't have any WES reference number. That's what we are going to apply for, because जब हम पूरा अपना प्रोसेस कर देंगे तो WES आपको एक रेफरेंस नंबर देगा. So at this moment we are just new to WES, we are just creating our account, so we don't have any WES reference number. So I'm just gonna select no, and then Navdeep, I'm just using a random email ID guys, you can use your own email ID. Control
So make sure guys to go through this thing, because आपका जो password आप fill कर रहे हैं that should have all these things which they have mentioned. So let me create my password. Yeah, so you have to select a security question here. Let's say in case आप अपना password भूल जाते हैं, तो then they're gonna ask you a security question so that you can reset your password. So I'm gonna select where you born, India, and here you have to check this box if you like to subscribe to the WES newsletter. So let's do it. That's it guys, it's pretty simple. Now you are done with your account. You just have to press on create account, and now we have to provide our information to the WES. So they have already my information which I have provided them in the last tab. My first name, last name, date of birth, select gender, man, right? Country, India. So you select your own country. Office. I'm just using a random address. City, New Delhi. You guys use your own address. It wasn't required though, this region or postal code, but so right now the telephone number in US Canada, but मैं as a new user WES पे register कर रहा हूँ. That means I'm in India, and that's why I'm applying for my ECA report, right? So I'm gonna select other. Please include and country and city codes. I'm not sure what's, so I'm just gonna type any. You include yours. Sorry. Okay, so they already have my email ID here. Just go through your email ID once again, and if you want to change it, just go ahead. Security question, India, and you have, I think you cannot see this tab, so basically this is next. I'm gonna press on next. So that's it guys, that's it. So now they are going to ask us about our education. So IRCC, what credentials you have earned. IRCC applicants to submit only their highest completed credential for an ECA. Please review the notes below to determine which credential you should send. To avoid delays, do not send additional documents. So basically यहाँ पर guys उन्होंने बताया है कि if you, so they have explained this thing because ऐसे questions बहुत ज़्यादा आए थे. First I was going to answer those questions in the comments, but सोचा कि जब हम actual में WES की websites पे apply करेंगे तब I'm gonna answer all these questions, but they have already explained here. So let's say if you have a master's degree, you do not have to submit your bachelor's degree for evaluation unless this is listed among your required documents. So basically जब हम पूरा complete कर देंगे WES report को, वहाँ पर उन्होंने required documents होंगे, लेकिन at this moment अगर आपकी master's degree है, you don't have to evaluate your bachelor's degree. That's what they have mentioned. यहाँ पर मैं एक point mention करना चाहूँगा कि अगर आपने masters की हुई है तो best way to go for the ECA report is to select IQAS instead of WES. But लेकिन अगर आपने bachelor's की है तो go with WES. ये ऑलरेडी हम इस पे वीडियो बना चुके हैं कि which is the best organization to go with. आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे. So at this moment मैंने अभी सिर्फ bachelor's की है तो I'll go with add credentials. अगर आपने masters की है you have to add your that credentials. So at this point I'm just going to press on add credentials. Click on this one. So country of education. यहाँ पर guys basically you are going to provide all the information regarding your credentials. So first question is country of education. I'm gonna type India. Type of education. So mine was university education. अगर आपने भी bachelor's किया, I'm damn sure it should be university education. It's not secondary, state board, technical education. So I think it should be university education. Which of these apply? Bachelor degree programs, master or doctoral. So mine is bachelor degrees at bachelor's degree at this moment. अगर आपकी masters है तो go with this one. Bachelor's degree. Name of the institution. You just, mine was Guru. So mine is Guru Nanak Dev University. आप अपनी university यहाँ पर डाल सकते हैं. I'm sure it's gonna be in the WES list. So I'm gonna select mine. Name of diploma certificate. Mine was Bachelor Bachelor in Technology or Bachelor of Technology. I think technology. Bachelor of Technology. So mine was this first option, Bachelor of Technology. You guys use yours. Your first name. Now this is the main point which I'm going to tell you guys. Your first given name
your last name as per credentials, not as per your passport. So basically क्या होता है कि पासपोर्ट पे बेसिकली हमारा लास्ट नेम नहीं होता है, लेकिन क्रेडेंशियल्स पे कई बार हमारा लास्ट नेम होता है. सो एट दिस पॉइंट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आप अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस एंट्री में क्या फिल करने जा रहे हैं. यू जस्ट हैव टू वरी अबाउट कि मेरे क्रेडेंशियल्स पे क्या नाम है, मेरा फर्स्ट नेम क्या है, मेरा लास्ट नेम क्या है. सो फॉर दैट आपको, अगर आप यहाँ पर जैसे मैं बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, आप जिस भी डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, यू जस्ट हैव टू टेक योर डिग्री जो आपको अवार्ड हुई होगी एट द एंड वहाँ पर उन्होंने प्रॉपर आपको दिया होगा योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. एंड अनदर थिंग विच आई वांट टू मेंशन हियर, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो मुझे वन ऑफ द हमारी वीडियोस में कमेंट्स में था कि शादी के बाद मोस्टली फीमेल्स का लास्ट नेम चेंज हो जाता है. सो लेट्स टू एक्सप्लेन दिस सिनेरियो, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि पहले एक लड़की का नाम था सुरभि शर्मा and then after marriage her name is Surbhi Thakur, but when after marriage that girl is applying for WES, उसका फर्स्ट नेम ही कंसिडर होगा और उसका वही नेम कंसिडर होगा जो उसके क्रेडेंशियल्स में है, नॉट कि उसका जो शादी के बाद नाम है. So in this case it's gonna be Surbhi Sharma, right? So I think I'm able to explain the thing which I wanted to. So yeah, so in here let's say कि मेरे credentials पे मेरा नाम वही था Singh. So in this case guys, in my scenario as well, मैंने यही डिटेल्स भरी थी, लेकिन मेरे पासपोर्ट में मेरा सिर्फ फर्स्ट नेम था नवदीप सिंह, लास्ट नेम नहीं था. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपको पासपोर्ट की कोई टेंशन नहीं लेनी एट दिस मोमेंट. यू जस्ट हैव टू सी योर डिग्री और वहां पर आपका क्या नाम है. सो नवदीप सिंह. फील्ड ऑफ स्टडी इज नॉट रिक्वायर्ड गाइस, सो इट्स फाइन, यू कैन लीव इट. ईयर अवॉर्डेड, सो किस ईयर में आपकी डिग्री खत्म हुई थी. सो आई एम गोना से माइन वाज इन 2014. And years attended, कब से कब. Mine was 2010 to 2014. That's it guys. So this is the information which we have to give to WES. और अगर आपकी masters हैं, you're gonna do the same things, but you have to select master's degree here, this one. And if you're going to access your PhD, then you have to select this option. So mine was bachelor's. I put all the details. You just have to click on save. सो यहाँ पर गाइज एक और चीज़ है कि यहाँ पर उनके मेरे क्रेडेंशियल्स ऐड हो चुके हैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी. सो यहाँ पर लेट्स से कि अगर मैं, उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि आप अगर मास्टर्स आपके पास हाईएस्ट डिग्री है तो यू डोंट नीड टू सबमिट योर बैचलर्स डिग्री अनलेस दे आस्क इन द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. सो लेट्स से कि इन सिनेरियो कई लोग क्या करते हैं कि बैचलर्स और मास्टर्स दोनों ही भेजते हैं WES को. सो इन दैट सिनेरियो यू जस्ट हैव टू प्रेस हियर add another credential and again आप यहाँ पर आकर अपनी मास्टर सेलेक्ट कर सकते हैं. सो दे आर नॉट लेटिंग यू सेलेक्ट. यू कैन सेलेक्ट हियर कि आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन है और क्या है सब कुछ, राइट. तो उसके बाद यहाँ पर जैसे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, अनदर क्रेडेंशियल आ जाएगा मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन उन्होंने बोला है कि यू डोंट हैव टू डू दैट. सो इन माय सिनेरियो आई एम गोइंग टू गेट माय बैचलर्स एक्सेस फ्रॉम WES. सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ओके कर दिया है. सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फिल कर दी हैं डिटेल्स. आई एम गोना गो नेक्स्ट. So in this tab guys, they just gonna tell you कि आपका delivery address क्या है. So basically they said copy of your WES credential evaluation report is included in the cost of your evaluation. Your copy will be sent to this address. So जो हमने address वहाँ पर mention किया था वो मुझे यहाँ पर show हो रहा है. So just make sure कि address आपका सही है, because आपको obviously जब आपकी WES report हो जाएगी पूरी access, आपको एक PDF भी मिलेगी, but along with that वो आपको hard copy भी send करेंगे. So make sure कि आपका delivery address ठीक हो, right? सो यहाँ पर रिसिपिएंट टू इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग योर रिपोर्ट, यहाँ पर एक मैं चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, बिकॉज एड रिसिपिएंट हम यहाँ पर कोई नहीं करने जा रहे. इफ़ यू आर जस्ट गेटिंग इट फॉर एक्सप्रेस एंट्री, हम सीधा यहाँ पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट. आई एम सॉरी गाइज, मेरी फोटो थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है एंड आई थिंक वहाँ पर हो रहा है. सो बेसिकली इट्स प्रीवियस एंड दिस ऑप्शन इज नेक्स्ट. दूसरा पॉइंट मैं ये बताने जा रहा था कि एड रिसिपिएंट यहाँ पर नहीं करना है. लेट्स से कि आपने पूरा WES का कंप्लीट कर दिया आज हमने प्रोसेस. Okay, I'll explain you at the end कि ये एड रिसिपिएंट क्या है, ये कहाँ पर यूज होना है. I'll explain you at the end, right? Because कुछ चीजें हैं जो अभी भी हमने करनी है. At the end I'm gonna explain you कि एड रिसिपिएंट ये चीज क्या है. बट यहाँ पर if you are just applying for express entry, आपको एड रिसिपिएंट नहीं करना, because this is just for IRCC जो हमने already details भर दी हैं. So I'm gonna press next. Primary purpose of your evaluation is immigration. ठीक है, यहाँ पर they have written the processing time. WES evaluation report is 35 business days after receipt. So basically जब आपके documents उनके पास पहुँच जाएंगे, after that they're gonna take 35 business days. And we have already explained all these things in our last video, जिसमें we have mentioned कि कौन सी आपकी अगर ये डिग्री है तो आपको इस बॉडी के साथ जाना चाहिए, अगर आपकी मास्टर्स है तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाना चाहिए.
सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आफ्टर दिस वीडियो प्लीज वॉच दैट एज वेल। अर्जुन एक्सप्लेन्ड ऑल द थिंग्स रियली वेल। यहाँ पर बेसिकली गाइस उन्होंने बताया है कि आपको मिलेगा क्या क्या जो आप WS के लिए अप्लाई कर रहे हो। द ECA रिपोर्ट इन द PDF फॉर्मेट जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ECA रिपोर्ट एक्सेसिबल बाय दिस, क्योंकि उनके पास ये रिपोर्ट होगी IRCC के पास। एक पेपर रिपोर्ट जिसके लिए डिलीवरी एड्रेस मांगा उन्होंने, और एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ रिपोर्ट एंड वेरीफाइड ट्रांसक्रिप्ट फॉर फ्यूचर यूज। तो प्राइस इज अराउंड $220 गाइस। दैट्स इट, दैट्स आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। दिस वाज बेसिकली काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। देन अगेन यू हैव टू प्रेस नेक्स्ट। सो यहाँ पर गाइस स्टैंडर्ड ओके, सो यहाँ पर आपको एक डिलीवरी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ये है कि जब आपकी एक्सेस पूरी हो जाएगी डिग्री तो PDF जैसे कि मैंने बताया आपको मिल जाएगी, लेकिन जो हार्ड कॉपी आएगी दैट्स they gonna send it to you back, right? बट उसके लिए भी आपको WES को पे करना पड़ेगा। वो जो 220 अभी था that was just to get your education access। वहाँ पर ये चीज़ें उस प्राइस में ये जो आपको वो वापस भेज रहे हैं आपकी डिग्री एक्सेस करके वो इंक्लूड नहीं था। सो बेसिकली स्टैंडर्ड नो ट्रैकिंग यू कैन गो विद दिस ऑप्शन। और अगर आप इंटरनेशनल कोरियर यूज़ करना चाहते हैं जैसे कि UPS देन यू कैन गो विद $85। मेरे टाइम पे दिस वॉज अराउंड $50, but I still selected this $10 thing and I got the report in 30 to 45 days. So I think I'll go with this option, but it's completely your call. आप इस ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं अगर आपको जल्दी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर एडवांटेज ये है कि यू गोना हैव अ ट्रैकिंग नंबर, राइट? यहाँ पर कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं होगा। सो दैट्स इट गाइज। यहाँ पर आपको जस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आई एम गोइंग विद दिस ऑप्शन $10। रेसिपिएंट 2, यहाँ पर अगर आपको और रेसिपिएंट ऐड करना है, सो ऑलरेडी रेसिपिएंट 2 वहां पर हमने कोई ऐड नहीं किया। जो मैं बता रहा था कि I'm gonna explain all those things at the end। मैं एंड पे समझाऊंगा कि रेसिपिएंट 2 कौन हो सकता है, राइट? सो यहाँ पर कोई नहीं है। दिस इज जस्ट द इमिग्रेशन IRCC जो ऑलरेडी उनको वो रिपोर्ट चली जाएगी जो WES आपको भेजेगी। योर ECA रिपोर्ट विल बी डिलीवर्ड इलेक्ट्रॉनिकली टू इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कैनेडा IRCC। सो यहाँ पर हमने और कोई सिलेक्ट नहीं किया रेसिपिएंट 2। सो आई एम गोना गो नेक्स्ट। सो बेसिकली इन दिस स्टेप गाइस दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी ताकि वो आपकी एजुकेशन एक्सेस कर सकें। यहाँ पर दे हैव मेंशन्ड योर एजुकेशन, वो कौन सी है जो भी आपने सिलेक्ट की होगी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन माय केस, एंड योर रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट। सो यहाँ पर यू हैव टू क्लिक दिस। फर्स्ट दे नीड ए डिग्री सर्टिफिकेट, सेकंड दे नीड ए स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, राइट? पहला जो डिग्री आपको मिलती है, सेकंड वन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्ट्स, एंड थर्ड वन इज एकेडमिक रिकॉर्ड्स रिक्वेस्ट फॉर्म। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली है क्या। यू जस्ट हैव टू डाउनलोड इट एट दिस मोमेंट। वी आर गोइंग टू फिल दिस रिपोर्ट गाइज आफ्टर वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर WES प्रोसेस। सो यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया डिग्री चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए, एकेडमिक रिकॉर्ड्स रिक्वेस्ट फॉर्म चाहिए विच वी आर गोइंग टू फिल। So basically in this step guys I'm going to explain 2 major points. First one is where we have to send these documents. So this is the address that they have provided कि उनको documents यहाँ चाहिए, and second thing who's gonna send the documents. So before I think 2019 एक पर्सनल बंदा यूनिवर्सिटी से एक सील्ड पैकेज ले सकता था विद द डिग्री, विद द ट्रांसक्रिप्ट एंड विद दिस रिक्वेस्ट फॉर्म, और उसको अपने थ्रू भेज सकता था WES को। बट एट दिस मोमेंट WES stopped in accepting the parcels directly from the individuals। उनको अब चाहिए कि यूनिवर्सिटी डायरेक्ट सेंड करे सील्ड इन्वेलप, सील्ड होना चाहिए गाइज। लेट्स से कि आपकी यूनिवर्सिटी ये सब कुछ भेज रही है WES को, लेकिन एट द एंड जो उनको मिल रहा है पैकेज वो खराब है किसी तरह से, WES नॉट गोना एक्सेप्ट इट। लेट्स से कि अगर सील्ड है प्रॉपर पैकेज यूनिवर्सिटी से टू WES लेकिन डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो WES इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। दे जस्ट गोना सेंड यू एन ईमेल कि आपकी हम एक्सेस नहीं कर रहे डिग्री बिकॉज आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। सो मेन पॉइंट हियर इज यू कैन नॉट सेंड योर डॉक्यूमेंट्स टू WES। योर यूनिवर्सिटी has to send all the documents required by WES, and on top of that वो documents पूरे होने चाहिए और एक sealed envelope में होने चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी अगर WES को लगता है कि अगर ये यूनिवर्सिटी से नहीं आया या ये सील्ड नहीं है या डॉक्यूमेंटेशंस पूरी नहीं है तो they gonna reject your application। So प्लीज मेक श्योर कि आप खुद नहीं भेज रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी भेज रही है, राइट? सो बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर एक पॉइंट रखना चाहता हूँ कि डिपेंड्स कि आपकी यूनिवर्सिटी, कई केसेस में मैंने सुना है कि यूनिवर्सिटी खुद से डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजती। सो इन दैट सिनेरियो गाइस डोंट चूज WES, गो विद IQAS एंड देयर अदर डिफरेंट बॉडीज।
और दूसरी तरफ अगर आपकी यूनिवर्सिटी भेज रही है WES को डॉक्यूमेंट्स एट देयर ओन, देन इट्स कम्प्लीटली फाइन विद यू। सेकंड पॉइंट कि अप्लाई कैसे करना है, सो इट अगेन डिपेंड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। मेरी यूनिवर्सिटी में जब मैंने अप्लाई किया तो हमें खुद जाकर यूनिवर्सिटी में लाइक फिजिकली वहां पर जाकर यू हैव टू पे देम, राइट, एंड देन वो खुद ब खुद सेंड करते थे WES को रिपोर्ट्स। बट एट दिस मोमेंट आफ्टर 2 years आई जस्ट टॉक टू माई जूनियर्स, उन्होंने बोला कि अब यू कैन अप्लाई ऑनलाइन। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स गाइज आपकी यूनिवर्सिटी पे कि वो आपको हाउ कैन यू अप्लाई ऑनलाइन सीधा डायरेक्ट WES के, कि आपको कुछ नहीं करना पड़े, यू जस्ट हैव टू गो टू योर यूनिवर्सिटी वेबसाइट और वहां पर जाकर आप डायरेक्टली WES के लिए अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं यूनिवर्सिटी को। दूसरे केस में मे बी आपको फिजिकली यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाना पड़े टू अप्लाई फॉर WES, सो यू जस्ट हैव टू टॉक टू योर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और वो आई थिंक आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं इस चीज़ में। सो बेसिकली टिल हियर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने एक अकाउंट क्रिएट किया, उसके बाद हमने अपनी क्रेडेंशियल्स ऐड किए, देन हमने डिलीवरी ऑप्शंस चूज किए और यहाँ पर आकर मैंने आपको बताया कि आपके जो भी ट्रांसक्रिप्ट आएंगे वो यूनिवर्सिटी भेजेगी, आप नहीं भेजेंगे। एंड अलॉन्ग विद दीज टू थिंग्स योर डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट्स, देयर इज गोना बी वन एकेडमिक रिकॉर्ड्स रिक्वेस्ट फॉर्म, वो हम अभी आपको जब वंस आई कंप्लीट द process of WES, I'm going to tell you how to fill that particular document. So you already have this address guys, just copy paste it somewhere, but you are not going to use this address, आपके यूनिवर्सिटी के पास होगा ये address, right? So we just have to press next. So यहाँ पर guys again they're gonna give you all the information that you have filled just to review it. So make sure guys to review each and everything properly, your email ID, date of birth, and the main thing, your mailing address. Primary purpose, immigration, your education, Navdeep Singh, Guru Nanak Dev University, University Education, Bachelor of Technology, आपकी जो भी होगी वो सारी डिटेल्स जो आपने भरी हैं वो यहाँ पर होंगी। Evaluation type ECA $220, processing time 35 days जो उन्होंने already mention कर दिया था। Recipient name, recipient 1 is you, recipient 2 is immigration, refugees and IRCC. Again I'm gonna explain this recipient section at the end, which is very very important if you're going to apply for PNP. So make sure to watch this video till the end. So यहाँ पर we're just gonna ask for the acknowledgements. I authorize, I certify the information, I have read and accept the WES. I agree to submit all the documentations as required by WES. You just have to press this next button. So again they are asking, please confirm your name and date of birth. Again please confirm all these things. I confirm, and then you have to confirm this. So your selection, this is basically HST eligibility guys. Your selection below will determine your eligibility to pay HST, right? So I'm not a resident of purpose of the Excise Tax Act and I'm not registered under that act. I'm a resident of Canada, लेकिन मैं अभी इंडिया में हूँ। If I'm applying for this report, for WES report, I'm gonna say no, not a resident. I'm gonna press continue. और यहाँ पर आपको HST बिल्कुल नहीं देना पड़ा, राइट? सो यू हैव टू सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड, चेक, मनी ऑर्डर, वेस्टर्न यूनियन। द बेस्ट वे टू गो विद इज क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स, किसी ना किसी के पास होगा, जस्ट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड बिकॉज दिस इज द फास्टेस्ट वे टू पे टू WES। देन यू जस्ट हैव टू सबमिट। सो यहाँ पर गाइज यू आर डन विद द WES। यहाँ पर यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स and once you submit the payment they gonna give you a reference number और आपका एक account create हो जाएगा WES पे और वहाँ पर लिखा आएगा कि they are waiting for your documents and आपके पास एक basically होगा WES reference number which I'm not gonna do here because मैं just ये video purpose के लिए बना रहा हूँ। और that's it guys, so यहाँ तक आपके पास होगा एक WES reference number। so उसके बाद guys जो कि मैं बता रहा था कि you have to I'm gonna show you how you can fill this academic record request form। so आपने जब पेमेंट कर दी तो आपके पास ऑब्वियसली दे हैव सेड दैट दे रिक्वायर द WES रेफरेंस नंबर। आपके पास एक रेफरेंस नंबर होगा, लेट्स से इन माय केस इट्स एनीथिंग, राइट? सो अगेन यू हैव टू फिल ऑल ऑफ योर डिटेल्स जो आपके क्रेडेंशियल्स पे हैं। फैमिली नेम लाइक लास्ट नेम वाज सिंह, नवदीप, राइट? प्रीवियस नेम इफ एप्लीकेबल, अगर आपका कोई प्रीवियस नेम था। डेट ऑफ बर्थ आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली जो मैंने वहाँ पर डाली थी। सो मेक श्योर जो आपने वहाँ पर डाली है while you were creating your account in WES वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। सो I'm just gonna say email ID I again don't exactly know. You just have to put all of your details in here, right? So institution name, right? Country India, choose yours, जो भी आपकी कंट्री है।
डेट्स अटेंडेड, मंथ, ये आपका जब डिग्री मिलेगी गाइस को आपको पता होगा कि कब से आपने शुरू किया और कब तक है। सो बेसिकली कई बार कब से शुरू किए ये नहीं होता, तो आप यहाँ पर फ्रॉम एक तुक्के से डाल सकते हो, और एल्स आप अपनी जो फर्स्ट ट्रांसक्रिप्ट आपको मिली होगी फर्स्ट सेमेस्टर की, मे बी कुछ कॉलेजेस की वहां पर डेट मेंशन हो कि व्हेन यू जॉइंड, मेरे सिनेरियो में नहीं थी, सो मैंने कुछ भी यहाँ पर फिल कर दी थी। सो यू जस्ट हैव टू टाइप, मे बी लेट्स से मार्च से शुरू हुई, राइट, 2010, 2014 तक गई, डिग्री नेम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, year of award 2014. So you don't have to put a major in here, it's not mandatory to fill this, and student ID. So basically यहाँ पर guys आपने fill करना है जो आपकी डिग्री आपको अवार्ड हुई होगी वहाँ पर आपको एक स्टूडेंट ID नंबर मिला होगा। मेक श्योर वो सभी ट्रांसक्रिप्ट्स और ID जो आपकी डिग्री मिली है वो सेम होने चाहिए। So let's say this is mine, right? So that's it guys, that's it. आपको और कुछ नहीं करना, you just have to print this out, right? So कई बार क्या होता है, यहाँ पर मैं दो केसेस समझाने जा रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि जब आप फिजिकली जा रहे हो यूनिवर्सिटी में तो उसको आपको ये फॉर्म भर के खुद देना पड़ता है, राइट, किसी सिनारियोज में, और कई सिनारियोज में ये होता है कि व्हेन यू आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई ऑनलाइन, योर यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू फिल दिस डॉक्यूमेंट फॉर यू। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आपका कॉलेज किस तरह वर्क कर रहा है। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेज, एज पर माई नॉलेज, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक दैट्स हाउ थिंग्स वर्क व्हेन इट कम्स टू दिस रिक्वेस्ट फॉर्म, कि जब आप फिजिकली वहां पर जा रहे हो तो कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ता है, यू हैव टू फिल एट योर ओन, बट इफ यू आर अप्लाइंग ऑनलाइन देन यू जस्ट हैव टू पे योर यूनिवर्सिटी एंड अलॉन्ग विद दैट दे गोना फिल दिस थिंग, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इन बोथ द केसेस यू हैव टू पे सम काइंड ऑफ फीस टू द यूनिवर्सिटी। इन माई केस इट वॉज 5,000 रुपीज इन 2017 I think, so it depends college to college, university to university कि आपकी फीस कितनी है। So that's it guys, that's all about the request form. Again I'm going to conclude this. हमने WES पे बनाया सब कुछ, अपना अकाउंट बनाया, बैचलर्स डिग्री सेलेक्ट की, वहाँ पे जब हमें WES रेफरेंस मिला हम यहाँ पर आए, वी हैव टू फिल द रिक्वेस्ट फॉर्म। फॉर दिस यू हैव टू टॉक टू योर यूनिवर्सिटी कि अगर वो आपको इफ यू हैव टू गिव दिस फॉर्म टू द यूनिवर्सिटी, राइट, अगर नहीं तो यू जस्ट हैव टू अप्लाई ऑनलाइन एंड वो खुद ये फॉर्म आपके बिहाफ पे भर के WES को भेज देंगे। और सो बेसिकली इन टोटल योर यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू सेंड 3 डिफरेंट पैकेजेस इन वन पैकेज, लाइक 3 डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लाइक 3 सेक्शंस होंगे डॉक्यूमेंट्स में और एक ही इन्वेलप में भेज रहे हैं वो। द फर्स्ट वन इज योर डिग्री जो आपको डिग्री अवार्ड हुई है, सेकंड वन ऑल ऑफ योर ट्रांसक्रिप्ट्स जो 8 सेमेस्टर की आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं जितने भी आपके सेमेस्टर थे, अलॉन्ग विद दैट दे गोना सेंड दिस रिक्वेस्ट फॉर्म। एंड अगेन वो जो डॉक्यूमेंट्स उनको मिल रहे हैं वो प्रॉपर सील्ड होने चाहिए, ऑब्वियसली वो आपके हाथ में नहीं है बट दैट्स देयर मेन थिंग कि आपके कुछ भी सील्ड से लाइक खराब नहीं होना चाहिए, वो सील्ड होने चाहिए और आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। सो जस्ट मेक श्योर कि जब आप यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं, बेसिकली कोई इशू नहीं आता जब यूनिवर्सिटी सेंड करती हैं, बट कई बार कॉलेजेस यूज टू नहीं होते इन चीज़ों को, देन मेक श्योर कि आप उनके साथ बैठकर अगर इफ पॉसिबल अगर आप फिजिकली जा रहे हैं तो मेक श्योर टू कंप्लीट ऑल दीज फॉर्मेलिटीज। So that's all about WES guys. और at the end मैं आपको जो मेन चीज बता रहा था, add recipient. So let's say guys once you are done with WES and you are applying for any PNP, लेट्स से कि आपको नोटिफिकेशन इंटरेस्ट आया फ्रॉम एनी प्रोविंस, आपको उसकी वेबसाइट पे जाकर उस प्रोविंस की पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर आपको अप्लाई करना पड़ता है। सो वहां पर यू कैन नॉट जस्ट गिव WES रेफरेंस नंबर या यू कैन नॉट जस्ट अपलोड द डॉक्यूमेंट दैट यू हैव रिसीव्ड, लाइक WES का जो डॉक्यूमेंट आपको आया है या जो एक्सेस रिपोर्ट आपको उन्होंने भेजी है वो यू कैन नॉट अपलोड दैट थिंग डायरेक्टली। आपको क्या करना पड़ता है, you have to request WES, right? Again आपके अकाउंट में आप जाएंगे, you have to request WES to add a recipient, जो अभी वहां पर हमने नहीं किया था। You have to add a recipient as the name of that province. वहां पर आपको चूज हो जाएंगे ऑप्शंस कि हम प्रोविंस के लिए जाना चाहते हैं। So in my case what I did, क्योंकि मुझे ओंटारियो की PNP मिली थी, तो what I did, I went to the WES in my account और वहां पर जाकर I had to add a recipient. So जो recipient आप add करते हो वहां पर you gonna get an option of Ontario, गवर्नमेंट का नाम समथिंग कुछ लिखा होगा विद द ओंटारियो नेम, सो वो आपको सिलेक्ट करना है। तो उसके साथ क्या होगा कि जब आप कर दोगे WES, you again have to pay to WES. So WES going to send one copy to Ontario government directly, because अभी फिलहाल WES ने क्या किया कि आपको एक रिपोर्ट भेजी और along with that एक IRCC को भेजी for the X presently, लेकिन for the PNP आप सीधी जो रिपोर्ट आई है वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिल सकता ओंटारियो को। So WES एक रिपोर्ट ओंटारियो और
जो भी प्रोविंस है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो उसको डायरेक्टली भेज देगी। आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि जब आप पे कर दोगे WES को टू गिव योर WES रिपोर्ट टू योर पर्टिकुलर प्रोविंस, तो आपको एक एंड पे कंफर्म करेंगे वो रिसीट। यू हैव टू डाउनलोड दैट रिसीट। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे ECA के उस प्रोविंस की वेबसाइट पे, देन यू हैव टू अटैच योर WES रिपोर्ट जो आपको पहले मिली थी। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू अटैच दैट रिसीट ऑल्सो, जस्ट टू कंफर्म, उनको प्रॉपर एक प्रूफ देने के लिए कि भाई हमने WES को बोल दिया था कि वो हमारी जो ECA रिपोर्ट है वो आपको भेज दें। सो ये इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं थी यूट्यूब पे, सो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। इट्स रियली हेल्पफुल, क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी करना है, बट या लेकिन जब आप प्रोसेस से निकलते हो तो देन you started learning a lot of things. So that's all about WES guys. I think I have explained all the things, lekin still if you have any kind of issues, please feel free to ask any question in the comments of this video. We'll try our best to answer these questions. And दूसरी चीज़ guys, हमें बहुत ज़्यादा messages आ रहे हैं DMs. I think मेरे अभी भी DMs around 100 से ज़्यादा DMs हैं मेरे Instagram पे. So आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं धीरे धीरे सबको आंसर कर रहा हूँ, लेकिन ये भी होता है कि जब आप आंसर कर रहे हो ये नहीं होता कि यू जस्ट हैव टू आंसर इन वन लाइन। वो एक थ्रेड चलता है कॉन्टिन्यूस डिस्कशन का, राइट। सो आई थिंक अभी तक मैं 200 से ज़्यादा लोगों को पर्सनल बात कर चुका हूँ पर्सनली उनसे। सो जिनको मैं मैसेज नहीं कर पाया, रिप्लाई नहीं कर पाया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड आई ट्राई माई बेस्ट। मैं जैसे जैसे भी टाइम मिल रहा है मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइज। आई होप यू हैव लाइक द कंटेंट विच आई हैव प्रोवाइडेड। एंड अगेन कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन गाइज। थैंक यू सो मच।